Namaskar. In this episode of Dil Se, we will be talking about the concept of a strong leader, what it means in the context of our constitution. The history of civilization has been the history of the economic progress of Homo sapiens, the social reform movements that have taken place that have transformed society. But there has never been a history written about the plunder, the loot that took place over centuries, the domination of man over man, the celebration of war where people were killed and temples plundered and stupas destroyed, where kings and queens celebrated the tragedies that took place, where empires looted colonies. Well, in the 19th century, all that somehow changed with the rise of the nation state and the onset of liberalism ideology, in terms of which the rights of man and the obligations of the state became central to the lives of people. It is in that context that there was a social contract that Hobbes talked about, though he said that men in the state of nature are at war with each other, and that man was essentially cruel, brutish, and short. The social contract theory brought about constitutions in terms of which the state provided security to citizens, and the rights of human beings, the rights of citizens of the country, were also respected by the state. That's why India became a republic, and that's how our constitution came into being. It is this social contract which is the essence of the rule of law. And in that context, what do you mean by a strong leader? That's what we are going to discuss today. And we have three exceptional guests with us to do that. We have Renuka Chaudhary, who entered politics as a member of the TDP in 1986. Until 1998, she was in the TDP. She was also Minister of State in that government. And of course, you moved on to the Congress. And you won an election from Khammam in 2004. And this is now your fourth term in the Rajya Sabha. You've just been elected, right? So congratulations. Full terms in Parliament. 6 full terms in Parliament. Amazing. Lok Sabha. And you're known for no holds barred. Yes. Even your male counterparts are sometimes think before they speak. But thank you very much for being here. Thank you. Nareshji is an old friend, a Stephanian. Nareshji also fought a Lok Sabha election, and I think he served 3 terms in Parliament, 2010 onwards, 2007 to 10, and then 2 terms thereafter. And in 2021 was his last term. He has been the spokesperson of the Akali Dal in the Rajya Sabha, in the sense that he is the leading light. He was the leading light of the Akalis in the Rajya Sabha. I think, if I am correct, you were responsible for tying up when the Akalis with the BJP, with the TDP, and you were responsible for that tie-up. So you are a very, very important voice. Have been a very important voice, not just in the Rajya Sabha, but even otherwise in the nation. So thank you very much for being here. Aarti is, of course, did her schooling in the Philippines at the international school, and she got involved because her father was a diplomat. She got involved in diplomacy, and then, of course, for 4 decades she's been a journalist. She's seen on television, she writes a lot, she talks about, and she's very much deeply interested in domestic affairs and how, the elections are playing out. So thank you very much for being here. Let me start off with you, Renuka. What do you mean by a strong government? There has to be a clear definition of what strong means, according to me. Strong is not might. And I don't think the current government knows the difference between the two. When you use might, then that is not a democratic process. If we talk about the Constitution of India and the democracy that we have embraced,
then strong is not might. And what is happening today is might. You have someone flexing heft and muscle, saying that I am strong. And recently we had the Prime Minister making a statement about how tough his government is, that they go into the homes of terrorists and shoot and kill them. And that is conceived as a symbol of strength. It is not. Strength is when you are resilient enough to accept and be inclusive of all the factors in your democracy, and that you do it with keeping the human factor as the fundamental principle on which a governance takes place. But that is not happening. So we don't know if, they said Parliament is the temple of democracy. Wonderful words. But is the democracy in Parliament? ये प्रधानमंत्री जी ने पीछे कहा था जी कि देखिए हमने घुसपैठियों को उनके घर जाकर घुस के मारा ना। तो पाकिस्तान में भी वो जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, वो भी कह सकता है कि हमने इनके घर आकर इनको मारा, क्योंकि पुलवामा तो यहाँ हुआ ना। तो हम उसको कहेंगे कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का स्ट्रांग है। अगर सशक्त प्रधानमंत्री है और ताकतवर प्रधानमंत्री है तो फिर संविधान काहे के लिए है? संविधान इसीलिए है ना कि संविधान के मुताबिक, संविधान में कोई सशक्त और सक्षम की बात होती है, ताकतवर प्रधानमंत्री तो बात नहीं करता। तो नरेश जी आप बताइए। ये कोई दंगल तो नहीं है ना? Kapil, you started off by saying, how do you define a strong leader? Yes. To my mind, a strong leader was a frail human being like Gandhi, Yes. who stuck to his principles Correct. and brought the mighty British Empire on its knees. Yes. A strong leader was Nelson Mandela. Correct. Yes. A strong leader was Nehru. Correct. Nehru could also have built temples. He also could have built statues, but he decided to build India. Yes. He laid the foundation of modern India. Correct. Whether it's the IITs, IIMs, ISRO, भाखड़ा, atomic energy, steel plants, जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, उसके निर्माता नेहरू थे। बिल्कुल सही बात है। अगर नेहरू ने IITs और IIMs ना बनाए होते, जो 2014 के बाद नहीं सिर्फ बने, तब से बने, उनकी विजन थी, अगर वो ना बनाए होते तो आज हम बड़ा फ़ख्र रखते हैं अपने हिंदुस्तानियों पे जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं, वो नेहरू की बदौलत है। डेट है। करेक्ट। वो होते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं नरसिम्हा राव को स्ट्रॉन्ग लीडर मानता हूँ, जी, जिसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बदल दिया, जिसने फ्रीडम दी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, बहुत बड़ा रिस्क लिया, बाद में अपनी सरकार भी गंवाई। बिल्कुल सही। वो होते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स। सिर्फ शब्दों और शब्दावली से आप मजबूत नहीं बनते। बिल्कुल सही बात। बताइए आरती जी, आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? No, so I think you're absolutely right that we need to define the Strength. word strong. You know, what does strong mean? बिल्कुल। Xi Jinping is a strong leader in China, North Korea. but he's a dictator. Vladimir Putin is a strong leader, but he's a dictator. Donald Trump claimed to be a strong leader, and he threw all democratic conventions out of the window when he lost the elections. So actually, in a democracy, when you say strong leader, it sends shivers down my back because सही बात। I mean, we have seen Indira Gandhi was a strong leader. She declared emergency. Rajiv Gandhi was a strong leader with 400 plus seats in the Lok Sabha. He tried to curb the, muzzle the media with tax raids on the Indian Express and the defamation bill that he tried to bring in and then withdrew hastily because of protests. So, I think in a democracy, which is what we hope we are developing in India, we're still in a nascent, we're still a developing democracy. I don't think a strong leader has any place. जी, This country is best run by consensus, through consultation, by taking people along, by being inclusive. So, सबका साथ। sabka saath, sabka vikas. हाँ। But in practice, not just in हाँ। words. उससे ज़्यादा बातों में, सबका शब्दों में। विश्वास। अब हो हाँ, गया। ये सही बात है। अब हो गया मूल सबका। मुद्दा यही है। नहीं, बट मैं इस पे तो दूसरे ढंग से देखता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग लीडर,
एक स्ट्रांग लीडर हैज़ नो प्लेस अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। That's right. हमारे संविधान में तो कोई नहीं लिखा कि भाई लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, वीक होना चाहिए। जो भी लीडर है, जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। और अगर संविधान के मुताबिक चलेगा और संविधान की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, अगर उनको ताकतवर करेगा तो वो स्ट्रांग लीडर होता है। सही, मेरे हिसाब से बिल्कुल वो बिल्कुल स्ट्रांग लीडर होता है। ये कैसे स्ट्रांग लीडर हुए जो इनके सामने हिंसा होती है, जो मणिपुर में जो हो रहा है बिल्कुल वो बिल्कुल स्ट्रांग लीडर की आंखों के नीचे हो रहा है ना। तो आप अपने आप को स्ट्रांग लीडर कह सकते हो। स्ट्रांग किस लिए? अभी लोगों की लिंचिंग होती है तो स्ट्रांग लीडर की आंखों के नीचे होती है। हाँ, अगर कोई माइनॉरिटीज भय से रह रही हैं तो स्ट्रांग लीडर की महिलाओं का मान नहीं है। तो ये कौन सी स्ट्रेंथ की बात करते हैं? मतलब ये ताकतवर जरूर होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो ताकतवर प्रधानमंत्री को संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। जैसे अपना लाल बहादुर शास्त्री जी थे कि उतनी विनम्रता से उन्होंने ताकत दिखाया, सबको साथ लेके गए। आज तक वो नारे उठाते हैं देश भर में, जिन्होंने उज्जैन को उन्होंने उठाया कि जय जवान और जय किसान, और यही हमारा देश का बुनियाद रही। आप संपत्ति देखो हमारी देश की कि 10% लोग 76% संपत्ति देश की संभाले हुए हैं, ये स्ट्रांग लीडर के नीचे। हाँ, स्ट्रांग है वो। तो नरेश जी, ये तो नज़रिया ही गलत है मेरे हिसाब से। देखिए, जिस वक्त आप शब्दावली से रोज़ लोगों में भय पैदा करते हैं अगेंस्ट इमेजिनरी एनिमीज कि हम आपको बचाएंगे, किससे बचाएंगे? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, हमेशा रहा है। लेकिन एक नया माहौल इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हमारे ऊपर हमला होने जा रहा है। कहाँ से हमला होगा? हमारी फौजें बहुत ताकतवर हैं, हमेशा थी। करेक्ट। और आज हम बार बार लोगों में एक डर पैदा कर रहे हैं। वो डर केवल एजेंसीज का नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक इमेजिनरी एनिमी हमने क्रिएट कर दिया है, एक हवा क्रिएट कर दिया है कि मैं ही बचा सकता हूँ, मेरी सरकार बचा सकती है, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसलिए ये सारी शब्दावली जो है, मेरे हिसाब से ये केवल वोटों की राजनीति है। इसका जो रियलिटी है उसके साथ कोई संबंध नहीं है। सही बात है। आरती जी, आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि ठीक है, आप किसी और के देश में चले गए और आतंकवादी को मार दिया आपने, पर आपने ये नहीं बताया कि चीन के साथ क्या हो रहा है हमारे बॉर्डर्स पे। बिल्कुल स्ट्रांग लीडर है ना, स्ट्रांग लीडर है। तो स्ट्रांग लीडर तो लाल आंख नहीं दिखा सकता। स्ट्रांग लीडर ने तो कहा था कि कोई नहीं आया हमारे घर में, पर जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, जो बाकी देश कह रहे हैं, जो चीन आप ये जो टॉक्स हो रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था अभी अपने न्यूज़वीक इंटरव्यू में कि कितने टॉक्स बार हम हो रहे हैं, ये काहे के लिए हो रहे हैं? क्योंकि चीन हमारे टेरिटरी में घुसी हुई है, हमारे चौखट पे कदम रखे। बिल्कुल लद्दाख में। तो मतलब ये नेहरू के बारे में कहा गया था कि वो चीन आई थी, अक्साई चिन को छीन लिया हमसे। जो चीन ने लद्दाख में किया है उसके बारे में तो अभी अरुणाचल में क्या हो रहा है? अरुणाचल में वही हो रहा है ना, वहाँ पे अपनी संस्थाओं के अपने नाम दे रहे हैं। वो कह रही है ये तो हमारा इलाका है। मगर ये सरकार भी बड़ी शौकीन है ना नाम बदलने का। तो यहाँ से सीख लिए शायद, अब वो नाम बदल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रांग कहाँ गई? और इनके सुब्रमण्यन स्वामी साहब जो इनके सांसद रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का कब्जा चीन का है। बिल्कुल, इनके अपने लोग ही कह रहे हैं। इसमें एक और मुद्दा पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे वीर जवान, हमारे फौज, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो जान कुर्बान करके वहाँ सीमाओं पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि देश में अफवाहें और असत्य बोला जा रहा है कि 1 इंच भी ज़मीन हमारी गई नहीं, तो क्या उनके जान हम किस लिए उनको वहाँ खड़ा कर दिए हैं? वो देखते हैं कि सच क्या है, वो गवाह है, चश्मदीद गवाह है, और हम
पार्लियामेंट में आके सुनाते जाएंगे कहानियाँ जब उनके जान खतरे में है और दिन ब दिन दुश्मन बढ़ते जा रहा है। हमारा ब्यूरोक्रेट्स को अरुणाचल में वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है तुम ऑलरेडी चीन में बैठे हो, तुमको पेपर वीज़ा बहुत काफ़ी है, और इसका कोई जवाब नहीं कोई जवाब किसको? ये तो स्ट्रांग है, तो हम जवाब भी नहीं पूछेंगे। पर नरेश जी देखो, अभी चुनाव में मैं कुछ ही समय पहले सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि नवरात्रों के दिनों में लोग मटन खा रहे हैं। अब ये कोई स्ट्रांग लीडर का उदाहरण है? ये किस किस्म की राजनीति हो रही है आपके हिसाब से? अब हम क्या खाएं ये भी फैसला होगा। मेरे हिसाब से आज सबसे बड़ी चुनौती जो मुल्क के सामने है वो ये है कि जैसे सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, हाँ, जैसे माइनॉरिटीज़ में एक खौफ पैदा किया जा रहा है। मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूं जो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सब जानते हैं कि सिखों की कितनी कुर्बानी रही है इस देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज जब एक बेचारा निहत्था फार्मर किसान जब सड़क पे आता है और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करता है तो आप उसे एंटी नेशनल कहते हैं, खालिस्तानी कहते आप उसे हैं। खालिस्तानी कहते मेरे हैं। किसान खड़े हैं। उसका बेटा आज भी सरहद पे खड़ा देश की रक्षा कर रहा है। तो ये किस तरह की राजनीति है? यू कैनॉट कीप पुशिंग देम टू द वॉल, बिल्कुल। because if you do, one day they'll be very, very, I would say, strong and unimaginable reactions. और हम सोचते हैं कि साहब नहीं, हम यहाँ कर सकते हैं, हम इनको दबा सकते हैं। ये क्योंकि सत्ता मेजॉरिटी इनके के हाथ लिए में एक कानून है, माइनॉरिटी के लिए दूसरा कानून है। ये सत्ता इनके हाथ में है ना, कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो ये ज़्यादा देर नहीं चलती। ये देश के लिए बहुत, देश की राजनीति को बहुत हानि पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ा खतरा इसका आएगा 2026 में, जब डिलिमिटेशन होगी। बिल्कुल। हाँ, सही जिस बात। वक्त ये साउथ की सीटें कम करने की कोशिश हाँ, करेंगे, बिल्कुल। तो आप उस वक्त देखेंगे कि कैसे लोगों का गुस्सा निकलेगा साउथ में। माइनॉरिटीज़ का गुस्सा अब भी है। तो ये एक हमने जो डिवाइड कर दिया है, जो पोलराइजेशन कर दी है केवल वोटों की राजनीति के लिए, ये बहुत खतरनाक है। जी मैं बता दूं, एक तो यहाँ साउथ की सेंसिबिलिटी क्या है, हमारा सोच विचार क्या, हमारा इतिहास क्या है, ये तो जानते तक नहीं। ये सोचते हैं कि दिन में 4 बार तुम कॉस्ट्यूम बदलो, लुंगी पहनो और आ गए, और 2 शब्द आप तमिल में बोल दिए तो तमिल सारा वोट दे देगा। ये हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती होती है कि इतना कम नज़र से आप साउथ को देखते हैं। ये कभी समझे नहीं कि हमारा शराफत कमज़ोरी नहीं है, और ये बहुत जल्द समझ में आ जाएगी कि आप डिलिमिटेशन ये सब करते जाए। हम साउथ कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ GST, नो डाउट अबाउट और हमें क्या मिलता है? मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स ये टुकड़े। और आप वादा करते हैं पार्लियामेंट में, आप पार्लियामेंट का गरिमा रखते नहीं है। जब तेलंगाना आंध्रा की डिवीज़न हुई है और इस हाउस में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री थे, और सारा पार्लियामेंट ने एक फैसला कर लिए और कहा गया था कि ये दिया जाएगा रिलीफ में। आज तक 1 कौड़ा पैसा यहाँ से मिला। तो स्ट्रांग लीडर है ना, तो हाँ, तो strong- कौन पूछने वाला नहीं है। हाँ, तो हम पूछेंगे जी, हम डेमोक्रेटिक ये तरीके बताइए, से एक स्ट्रांग लीडर अगर पार्लियामेंट में नहीं आता और किसी जवाब नहीं 10 देते। साल में किसी सवाल का जवाब नहीं देता, मीडिया वो का- किस मीडिया किस्म का का ताकत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। नहीं करेंगे। नहीं किया इलेक्शन है। के 10 टाइम पे साल में- घूमेंगे। 10 56 इंच ताकतवर है ना, का वो छाती समझते नहीं, हैं। मतलब मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, मीडिया के But तो प्रश्न strong है नहीं, ना। मीडिया के प्रश्न के जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो अगर इसको स्ट्रांग बोलते हैं तो फिर मुझे मालूम नहीं। पर मैं यही एक ताकत चीज़ है। मैं एक I would चीज़ just like यहाँ to add that the essence of a parliamentary democracy is the cabinet system. You both have been members of Yes. the correct. You have seen how healthy debates used to take place around the cabinet table. बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि सिर्फ एक आदमी कहता है कि माई वे और द हाईवे, करेक्ट। तो उसका नतीजा फिर हम देख रहे हैं। किसानों ने 7 महीने आंदोलन किया क्योंकि एक आदमी ने फैसला कर लिया कि नहीं, मैं ये होगा।
मुझे मालूम है कि उनकी पार्टी के अंदर उनके कई कैबिनेट मिनिस्टर्स इस फैसले के साथ राजी नहीं थे, लेकिन कैबिनेट सिस्टम जब नहीं चलेगा तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? हाँ हाँ, वही ताकत के निशान है उनके तो लिए। इसलिए जो आप स्ट्रॉन्ग लीडर की बात करते हैं वो डेमोक्रेसी को डिरेल कर देती है। हाँ, बस यही तो, ये मुद्दा, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Absolutely, and this is what I feel, that in a democracy there is no room for a strong leader. There's room for firm leadership. We need Firm- sane leadership. No, and firm leadership, meaning you take decisions by President, consensus according to the constitution, and then remain firm on those decisions. जी. No flip-flops, nothing. You know that is to my mind, you respect institutions. You give judiciary the space that it deserves instead of trying to influence, judgments. You know, to my mind, that's what firm governance is, and it's not necessarily strong. Strong is a scary word because it implies dictatorship. It implies authoritarianism. It implies just, steamrolling and riding roughshod over common folk and not taking their aspirations. Let and me move feelings into away account. from instances and examples, but let me go to the fundamentals of government. What is the fundamental of government in a constitutional framework? That there are aspirations of people. By There the are people. aspirations of people. Most people in the country, in any country, are really at the bottom of the pyramid, who are poor. They have no access to education, to quality education. They have very little access to healthcare. These are the main duties of the state. Education and healthcare are the main duties of the state. As far as commerce is concerned, you let the commercial people do what they want to do, subject to certain rules and regulations. But you must provide education. If you are a strong leader and you are committed to the Constitution, you must provide education to our people. How is it that our people, even though they get access to schools, drop out? Our gross enrollment ratio is less than 30%. मतलब कि 30% जो बच्चे 12वीं तक पहुँचते हैं, वो 30% ही आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 70% तो जाते ही नहीं। तो अगर कोई लीडर है इस देश का, तो उसके सबसे पहले कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशनली कि भाई अपने जनता को शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, ये हमारा कर्तव्य है। 10 साल में इस सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जी, आप प्लीज बजट पे एक नज़र डालिए। अगर आपका नज़रिया इस सरकार, स्ट्रॉन्ग सरकार के बजट पे आप देखेंगे तो वहाँ कटौती होती जा रही है। एजुकेशन 30% वहाँ तक, हायर एजुकेशन तक पहुँच जाते, बहुत अच्छी बात है। हर छठवां इंसान आज सारा दुनिया में एक इंडियन है। हम यही सरकारी स्कूल्स में इन बच्चों को पढ़ा के ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जो 30% तक पहुंच जाते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलते हैं। सबसे खराब बात इस बात की, और हम गारंटी पे गारंटी, वारंटी पे वारंटी दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, हमें कहा गया था, मान लीजिए कि मैं अनपढ़ गंवार औरत हूँ, मैं बड़ी उम्मीद से बैठी रही कि 15 लाख मेरे हिसाब में आ जाएंगे। मेरा वो तो जुमला था, वो तो नहीं, रेणुका जी जुमला था, वो तो मान लिया उन्होंने। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। मैंने प्रधानमंत्री ने वादा किया तो मैं मान के चली भाई। उन्होंने तो ये कहा था जो अवैध पैसा है बाहर स्विट्जरलैंड में, वो तो आ जाएगा, वो भी तो नहीं आया। वो भी आया नहीं। फिर उसने कहा कि किसानों का इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी। तो किसान, हम बैठे रहे कि भाई हम रोज हल चलाए और बैठे रहे कि भाई हमारा जो उगाते हैं वो फसल का रेट तो दे दो, 3 गुना तो बाद की बात। बोला ना कैसे किसानों के साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि हर घर में एक नौकरी मिल जाएगी, है सो नौकरियां निकाल दे रहे हैं। नहीं, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नरेश जी पूछना चाहता मैं हूँ। यही बात करना चाह रहा था जो रेणुका जी कह रही है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट खासकर। जी, आपने कहा ड्रॉप आउट, हाँ लोग ड्रॉप आउट हुए, लेकिन जो बेचारे पढ़ भी गए उनको भी नहीं मिलता। उनके कहीं पास के नहीं नौकरी रहे। नहीं है। और उसका फंडामेंटल रीजन ये है, strong leaders take strong action. Correct. And they, or what she said, firm leaders take those actions which are, you take a certain risk. Narasimha Rao took a risk, यस, but you decide what is good for the future of this country.
We were allies of this government in 2014 and I still remember इनके मैनिफेस्टो में था कि हम लेबर रिफॉर्म लाएंगे। हाँ, आज नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आज हमारे, मैं ये नहीं कहता कि ग्रोथ नहीं हो रही, हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। आज सारा कुछ रोबोटाइजेशन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। उसका मूल कारण ये है कि हम घबराते हैं कि उसका इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लेबर रिफॉर्म नहीं लाते। जब तक हम लेबर रिफॉर्म नहीं लाएंगे तब तक लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेबर रिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि एंटी लेबर, नो नो एब्सोल्युटली, लेकिन लेबर रिफॉर्म तो लाना पड़ेगा ताकि जो इस मुल्क के बड़े बड़े साहूकार हैं, जो 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 बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं, उन्हें कोई हिचक ना हो लेबर को नौकरियां देने में। आज वो घबराते हैं कि अगर नौकरी दे दी और हम निकाल नहीं कभी सकते हाँ, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए जो मेन मुद्दे हैं वो उसकी तरफ फोकस होना चाहिए। लेबर रिफॉर्म एक है, पुलिस रिफॉर्म दूसरा है, जुडिशियल रिफॉर्म आप पुलिस तो इनके बड़े कब्जे में वकील है, हैं। पुलिस तो इनके कब्जे में है। पुलिस तो बात उनके फिर कुछ आती है ना हाँ। कि उसका एक जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो रहा है वो सोसाइटी पे हो रहा है अब और वो बहुत खतरनाक है। नहीं भाई, इनका मतलब ये है ना कि क्योंकि ईडी जो भी चाहे हम ईडी करेगी, जो भी चाहे सीबीआई करेगी, इसलिए हम स्ट्रांग हैं। इनका मतलब ये स्ट्रेंथ का ये है कि पार्लियामेंट में फिनेंस बिल में कोई और प्रावधान रखा जाएगा जिसका मनी से कोई ताल्लुक नहीं, उसको पास किया जाएगा और फिर राज्यसभा में उसकी बहस नहीं होगी। ये स्ट्रांग लीडर है। आपको 146 लोगों को सस्पेंड कर दो पार्लियामेंट में, तो ये स्ट्रांग लीडर और बिल पास कर दो, ये स्ट्रांग लीडर ऑपोजिशन है ही नहीं, मतलब कि उनको आप संविधान बोलने नहीं देते हैं। बिल को पार्लियामेंट चुप से कर निकाल दिया है, दिए कितने पार्लियामेंट लोगों से को निकाल एक दिया है, साथ, और आप बिल पे बिल पास कर और आप वो कहते हैं कि क्योंकि और ये संविधान के खिलाफ है और जो संविधान के खिलाफ करे वो स्ट्रांग लीडर हो गया। ये कौन सी परिभाषा हुई? ये नहीं, आप पर एक चीज मैं आपको क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहे थे, अभी लोकनीति CSDS ने एक सर्वे किया है अभी जी, और उसमें ये दिखाया गया है कि दो सबसे बड़े मुद्दे हैं लोगों के लिए इस देश में, एक है इन्फ्लेशन प्राइसेस, हाँ, बिल्कुल, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। और मतलब जिस तरह से ये एम्फसाइज किया गया है वोटर की तरफ से, ये CSDS वालों का कहना है कि ये कभी नहीं दिखा है कोई भी सर्वे में। तो मतलब ये इशू जो है, these two issues are actually the burning issues of the day. A strong government is not just to go into another country and bump off terrorists. A strong government needs to give a future to its citizens. I want to tell you an example. एक बंदा मेरे पास आया कल ही, पार्लियामेंट एम्प्लॉई है, उसके 2 बच्चे हैं। लड़का हैज गॉट 98.6 मार्क्स इन्फोसिस में, लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। दोनों को नौकरियां नहीं मिले हैं जी। अच्छा, गिरते मरते लोन के लिए घूम घूम के लड़का को विलायत भेज दिया कि वहाँ कहीं नौकरी मिल जाएगी। इतनी देर में हमारी रुपया की दर्जा गिरते जा रही है, दिन ब दिन घटते जाए। अब क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसको विलायत भेजने का, लड़का को अभी 11 लाख उसको अभी भर्ती करना है, लाएगा कहाँ से, कैसे? तो आप हर कदम पे ईज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। अरे कहाँ ईज ऑफ बिजनेस, कहाँ ईज ऑफ लाइफ? सारे तो निवेश बाहर हो रहा है, हमारे खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट तो बाहर चले गए। कितने भारतवासी आज के दिन जो कमा के पैसे वाले धनवान हैं, नमस्ते करके चले गए। इतना ईज ऑफ बिजनेस चल रहा है दी, 56 इंच का छाती घूम रहा है। हम लोग रैम्बो पॉलिटिक्स करते हैं, हर स्टेट में जाकर उनका नाम बदल देते हैं, इनका जान बदल देते हैं, हम कुर्बान कर लेते हैं, मगर हम है जी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये देखिए, ये एक किस्म की राजनीति चाहते हैं, केवल एक किस्म की, जैसे नरेश जी ने बोला, एक किस्म की राजनीति चलेगी नहीं इस देश में। कपिल, आई बिलीव दैट इन ए मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस society like ours, the only thing that can sustain our society is democracy. That's correct. And unless we nurture institutions That's right. which are the basic pillars of democracy,
वी आर ऑल डूम्ड। That's right. और आज अफसोस से कहना पड़ता है कि एक एक करके सारी इंस्टीट्यूशंस जो 1950 से बिल्ड हुई वो एक एक करके डिमोलिश की जा रही हैं। आपने प्रेस फ्रीडम की बात की, जुडिशरी की बात ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव की बात ले लीजिए, कैबिनेट सिस्टम की बात ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन की बात ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन की बात ले लीजिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की बात ले लीजिए। ये खतरे से खाली नहीं है और हम सबको बड़े गंभीर तरीके से सोचना पड़ेगा इस बारे में। सिर्फ क्रिटिसिज्म से बात नहीं होगी, बिल्कुल सही। कि हम क्या कदम उठा हमको सकें। लोगों का ओपिनियन बदलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया अलायंस भी तो कुछ नहीं कर रहा। अब ये तो बताइए नरेश जी कि इंडिया अलायंस जो बड़े मतलब के धूमधाम के साथ हमने इकट्ठे हुए थे लोग, आज की उनकी भी कोई विजन नहीं है ना, पर मैं नहीं, मैं मगर एक आई चीज़ थिंक एक कहना शुरुआत चाहती तो हूँ, है। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि मीडिया, आई एम सॉरी टू से, सुनाई आई एम अ नहीं मेंबर दे ऑफ सकती, दैट मीडिया, बट मीडिया इज bought. Yes. It is a Godi media. Now, I don't know, maybe these leaders are doing something on the ground. Privately, I get reports that things Yes, are yes. happening, that they are raising issues that are close to people's hearts, that there is some campaigning going on, a much quieter, you know, much more Ground localized, ground level campaign. But we don't get to hear of it You sitting can't in Delhi report it. because the media does not report. The media just shows one person and one rally in a loop the entire day. So, you That's know, because he's a strong leader, and as you saw, this is Godi media. He makes sure that only his face is shown in the national media. But You you know, know- we can say all that, but I actually pity them because they are victims of terror and fear. Themselves, yeah, Because they're these victims agencies themselves. attack them like wild animals. Each नहीं, one आप- of them. आंध्र They are put in आपने jail. They don't get bail. Correct. That's what I'm saying. It's But failure of judiciary also. Their other institutions are at fault, quite Yes. frankly. नहीं नहीं That's आरती a, जी that's ने a very ठीक कहा। serious issue, in fact. That's again, there is this aura that I am such a strong leader, Invincible. I can do anything by I'm any invincible, institution. I can stomp In other on words, anyone. you can demolish democracy and call yourself a strong leader, but that's not the compact, that's not the constitution was made of. We didn't become a republic to have a man demolishing our entire democratic system. That's not the evidence of strength. That is why we need to worry about the future of this country, because when all these institutions get demolished, we all have limited lives. What happens thereafter? What happens to the You children cannot, we you bring cannot into this world? put together something which has already been fragmented. That's a very big issue. And we all need to, all of you who were my colleagues in Parliament, especially in Parliament, but now you can't even raise your voice in Parliament. They don't give हाँ, you time. निकाल दो बाहर, फेंक देंगे। They switch off They- your no, mind. time is not given. This is the whole problem. On the farmers issue, I represent Akali Dal, which is basically a farmers party. That's I hate to say, the previous day I was told that I would be given 12 minutes to speak. That morning I was told, no, your time has been cut to 2.5 minutes. ले, Because they want to suppress any voice which can be a voice of reason, any voice which is a contradictory voice, and that includes the press. I mean, I don't blame them. Look at their number of her colleagues who are in jails. yes. Yes. मैं बता दूं। All I am in leaders. constant मैं- fear that they may dig out some article I wrote 10 years ago हाँ, they and will- slap they a case of, you know, Be sedition ready, be against ready. me, which is what they did to, Yeah. you know, some of my colleagues. Yes. No, It's आंध्र very, very प्रदेश में, scary. आंध्रा, नॉट तेलंगाना, आंध्रा में अमरावती किसान 2.5 साल से, आई मीन इतना हिस्टोरिक मोमेंट, इसको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए कि कितना सिविलाइज्ड ढंग से वो लोग प्रोटेस्ट करे जा रहे। एक स्क्रीनशॉट तक बाहर नहीं निकला। आई वेंट देयर माई सेल्फ। वो लोग आके बोले, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के किसान आए और बोले मैडम आप आइए। मैं गई और मैं जानती हूँ कि मुझे आंध्रा में घुसने के लिए कितना सताए। पुलिस बैरिकेड, जो औरतें ताली लेके खड़े होते आरती उतारने, उनको मारपीट करके उसको हटा दिए। पुलिस आके बोले हम हथकड़ी चढ़ाएंगे। मैंने बोला साइज का नहीं है, जाके मोटा वाला लाओ, ये तो चलेगा नहीं। तो
बैरिकेड्स लगा दिए गाड़ी जाते वक्त कि आप आगे नहीं जा सकते। किसानों के साथ में तो यही किया यही कर रहे हैं। और आंध्रा में 2.5 साल से चल रहा है जो औरत किचन के चौकट से बाहर नहीं निकली, आज बाहर रह के अंदर नहीं जा रही है। शी हैज बिकम अ मिलिटेंट एक्टिविस्ट। When the students protested, बिल्कुल। but they foisted UAPA cases उनके खिलाफ। बिल्कुल। वो बेचारे आज भी अंदर हैं, That बेल मिलती entire नहीं। Shaheen Bagh agitation Yes. The peaceful against agitation. CAA was run by women. Yeah. Yes. No, I think it's really, actually, Renuka ji is raising this very, very important issue. Yes. Because we are seeing that women are getting much, much more active in the Yes. political space. Yes. Actually, I'm They thanking are them for this. outnumbering men Yes. at the polling booth. They are taking part in demonstrations and in protest marches. Because I think for them, issues like going across the border and killing a terrorist is not as important as basic Of course. bread and butter issues. They have to run the home, they have to bring up their children, they have to keep the family going. So they realize the importance of these bread and butter Absolutely. issues. And that's why they are now coming out to protest, because they are the biggest sufferers actually. Yes. At a fed time up. of unemployment, at a time of inflation. No, they are the ones who are discriminated against the most. And Yeah. of course, there is this problem of security, Yes. for women's security, women's safety, which nobody even bothers to address. A lot of nice words, but कुछ नहीं nothing होता, on सही the बात। ground. The police is as biased and as Brutal. Yeah. as the rapists. Yes. Which woman, I mean, women are, I must say, I have to give them credit that they're becoming bold now and they are They should, braving they it. have to. They're braving this, Yes. and coming out and reporting and, going to the police. But I mean, I think, men need to start. That's what I was talking of, police reform and judicial Yes. reform, which are interlinked actually. Yes. That's correct. The I mean, moment, the every moment institution is somebody interlinked. feels that if he commits a crime, he There will is be no punished escape. expeditiously. Yes. Expeditiously. Yes. Yes. Only Keyword. then there will be rule of law. Yes. Now you can do something for 20 years. नहीं कचहरियों में आपको डेट जो मिलती इनके जाएगी। नजदीक है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, जो इनके खिलाफ है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इसीलिए तो This is strong नक्सलिज्म leadership, बढ़ती no? है। When governance fails, नक्सलिज्म बढ़ती है क्योंकि it is instant justice there. मेरे पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, हमारे छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है एंड वी हैव सम मूवमेंट हैपनिंग देयर. I have never been troubled. I have gone, met them in hospitals. Openly I'm saying it. And I've asked the boys कि वहाँ क्यों गए बेटे, क्या हो गया? He said, मैडम मैं क्या करूँ? मेरे माँ 4 घरों में झाड़ू पोछा करके, कपड़े धो के, खाना बना के, बर्तनें धो के, कमा के, मैं और मेरी दोनों बहनें, माँ और दोनों बहनें मुझे पाल पोस के पढ़ाए. मेरा फादर का डेथ हो गया, मैंने उधार लिया. आई हैव टू, मेरे बहनों का शादी का जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, मैं इसकी शादी नहीं कर सकती. मेरी माँ बीमार पड़ गई, मुझे उधार पैसे, लोन, बैंक, किसी ने पलट के थूका नहीं मेरे मुंह पे. मैम मैं बीए पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली. ये लोग नक्सलाइट्स ने मुझे पैसे दिए, मेरे माँ का इलाज हो गई. मैं तो, मेरी वफादारी उनके तरफ है. ये देश जो मेरा है, लेट मी डाउन. ये बच्चे, मैं क्या कहूँ उन लोगों से, आई डोंट नो. Just to give you some data, the extent of unemployment between children who are 20 to 29 is 29% and 25 and above is 47%. बताओ ये हिसाब है. और घरों में छिपे रहते हैं गांव में. इसीलिए आपका जो सर्वे है वो यही कहता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट का है. इसलिए जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, जब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं लाएंगे, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स न्यू टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इन कंप्यूटराइजेशन. अब वो तो हो ही नहीं रहा इस देश में. तो अगर वो नहीं होगा तो बाकी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ जाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे. उसके बारे में तो हम तवज्जो नहीं देते. बात करते हैं हम कि कौन सा वो क्या खाता है या क्या पहनता है, ये बातें करते हैं हम, इस पर भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम बड़े सशक्त और हम सब महापापी हैं. आप ही का पेटेंट राइट है जी पूजा पे, कोई तो गुण रखे. About a strong government, an impression is being created as if coalition governments are weak governments. हाँ. That's right.
Now, you've been part of. Yes. Glad we you all brought been this part up. of, yes. Now, historically, please look at it. Narasimha Rao was Was a coalition supposedly a weak government. Correct. Look at the reform he brought in. Absolutely. My father was running supposedly a weak government. Correct. He withstood the pressure on CTBT, Correct. huge American pressure, Yes. huge European pressure. He refused to sign it. Mr. Vajpayee took advantage of that. We tested the bomb. Correct. His was a coalition government. Correct. Dr. Manmohan Singh thereafter signs the nuclear treaty with Correct. US Correct. against all pressure. Again, coalition government. And the economic. Now, they were not weak people. and the maximum growth They, during they this took period. firm steps, That is the but strength. they were self-effacing. Correct. They were modest people. They followed the Indian ethos of not tom-tomming your own success or your own contribution. नरेश आज तो आप एक चीज को अचीव करते हैं और 10 चीजों की बात करते हैं। अब तो आप मोदी की गारंटी की बात होती है केवल। तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं हम आपकी तो गारंटी चाहते हैं कहाँ कि जो गई? संविधान की गारंटियां थी अब उनका पालन करो। हमारा जो बेसिक ईथॉस था, मैं तो इस सरकार को कहूंगा और किसी से मत सीखिए, तो कम से कम वाजपेयी जी से ही सीख लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। निम्रता से बात करते थे, सेल्फ एफेसिव थे, हमेशा inclusive मॉडेस्टी के थे। साथ बात करते थे, He कभी was ओवरस्टेट नहीं inclusive। करते थे, बिल्कुल, किसी को गाली नहीं बकते थे। आज तो आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं रहे, नहीं नहीं नहीं। आज तो एनिमीज हो गए। आज पार्लियामेंट में भी यही माहौल हो गया है। अरे हमारा आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया नरेश जी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारे जैसा देश है, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक एंड विद अ फेडरल structure, yeah. What we actually need at the center is not a strong government with brute majority. 400 पार वाला नहीं चाहिए हमें. What we need is a coalition government. And I think those 20 odd years of experiments with coalition, we have seen the benefits it has given us. All in terms of economic growth, in terms of opening up to the world, in terms of ease of business. Absolutely. Our relationship with our neighbors. Our relationship with our neighbors. Are absolutely. checks and balances? Yes. अभी देखो The fundamentals and of the it. respect for India, Yes. has only steadily grown. I mean, yes, this government has of course raised India's stature in the world, but the groundwork, the process started long before by coalition government. अब देखिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करते, चलिए छोड़ दीजिए। नेपाल आंख नेपाल के दिखा हमारे रहे हैं। देखे जो संबंध हैं वो खराब हो रहे हैं। अभी इन्होंने श्रीलंका के साथ जो इन्होंने मुद्दा उठाया वो उसके साथ खराब होंगे। मालदीव्स ने तो मालदीव्स में कुछ आपने देखा क्या हुआ है। तो मनमोहन सिंह के टाइम तो ऐसा नहीं था ना। तो ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का नतीजा है, स्ट्रॉन्ग लीडर का नतीजा है कि सबको हमारे काटो। पड़ोसियों के साथ के सारे रिश्ते खराब हो जाएं। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? क्योंकि हम अकेले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, नहीं। क्यों आपकी गारंटी है कि मैं आपको इस स्वर्ण भारत, विकसित भारत का सपना दिखा रहा हूँ। कौन सा विकसित सपने ही भारत? है। जब तक आप इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के काम नहीं करेंगे, उस पे पैसा नहीं डालेंगे, महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारा भारत, विकसित भारत कहाँ से होगा? आज लोग यही पूछ रहे हैं कि आप जब 2035 की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, तो बात तो कीजिए आज की। आज क्या है स्थिति? आज जहाँ नौकरी नहीं है, महंगाई है, तो मैं Demonetization का असर है इसीलिए अभी भी। लोगों का दिमाग और उनका जो सोच का तरीका है, ये कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, Correct, स्ट्रॉन्ग मैन, Correct. ये एडवर्टाइजमेंट है। वो वही है। जो प्रोडक्ट हम लाते हैं ना और कहते हैं रातों रात आप सुनहरी कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा अगर ये यूज करें, तो ये Fair and सरकार lovely. का हाँ Fair फेयर and एंड लवली, वॉशिंग पाउडर, निरमा, यही हो रहा है यार। हर रोज धुलाई होते हैं, पहले उंगली उठा के इशारा करते ये करप्ट है, ये फलाना है, ये डिमकाना है, 2 दिन बाद वो पहुंच गए। वो तो स्ट्रेंथ है ना तो इनकी। अभी कह रहे हैं ना और ईद आपने के जो धुलाई इसमें- की बात की, हाँ जी, सबसे बड़ी देश में लॉन्ड्री तो उन्होंने अपने आप खोल दी है। मैंने वही electoral कहा, bond. washing करप्शन की powder, बात निरमा। करते हैं, और जब वो लोग इनके पास आ जाते हाँ हैं, सब धुल गए, वो दूध के हो धुले जाते हुए। हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का देखो इन्होंने क्या किया। हाँ, क्या बैंक को जवाब देने का अधिकार नहीं था। बेचारा एसबीआई की भट्टा बैठ गई।
उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जी कि जवाब दे सकते हैं 2 Even you दिन know के the अंदर। reserves of the Reserve Bank of Yes, India has fallen. Yes, has fallen. because तो of उसका the- जवाब दीजिए, हाउस में बहस करिए ना, पूछिए ना, जवाब आइए ना। थर्सडे को प्रधानमंत्री जवाब देने का दिन है, कभी देखे हैं कोई? Kapil, fortunately, I believe that the social media in this country is still हाँ, very शुक्र है, strong. शुक्र है, 4 दिन और And I चलेगी। do hope that they will provide an adequate challenge to this controlled media. That's true. आज सब चैनल्स तो एक ही चीज़ दिखा रही हैं। Correct. आप कोई चैनल उठा लीजिए, वो तो बेचारे घबराए बैठे हैं या खरीदे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो शक नहीं। आज जो ओनली ऑल्टरनेटिव इज सोशल मीडिया, तो हम तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हों और सच्चाई देख सकें। पर उसी social में media देश का को भला भी- होगा। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल अभी तो करने की प्रयास कोशिश करेंगे। हो रही प्रयास है, लेकिन अभी कोशिश तक हो उतना रही नहीं है। हुआ। जो बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स थे उनको तो बंद ही कर दिया। बंद कर दिया उन्होंने। किसी और ये जो इंसानों का amendments पॉडकास्ट आपको निकाल ज़्यादा दिए मालूम हैं। है क्योंकि आप इस जो फील्ड इनकी में भी बजट थे। के तरफ तो जो इशारा करे, उनका IT काटेंगे। अमेंडमेंट्स लाए गए हैं रिसेंटली, दे आर ऑल एम्ड एट कंट्रोलिंग सोशल Absolutely, मीडिया। absolutely. बट Anyway, आई हैव फेथ इन हमारे We have- देशवासियों we have- में। हाँ, faith in our सोशल people. मीडिया नहीं है तो कोई और मीडिया निकालेंगे, अरे देख लेंगे। हम कौन से कमजोर बैठे हैं, हम भी तो इनके जैसे स्ट्रांग नहीं, हम सेन इंक्लूसिव और हमारे ताकत स्ट्रेंथ है। I think it's time. We've had a wonderful discussion. I think that you'll all agree with me when I say that a strong leader is strong only when the institutions, constitutional institutions of this country are given strength. In Sir, other वो words, समझे ना पहले। unless you strengthen them, then only this country will be strong. Because strengthening institutions means allowing people to do what they By the desire to people, do. for the Don't force people to do what they don't want to do. Don't create divisions in society, and ensure that all institutions, judiciary, election commission, do their work in accordance with what the Constitution requests them or desires them to do. That's what strong leadership should bring to this country, and I think that the last 10 years have provided just the opposite. Yes, absolutely. That is the principle of democracy. By the people, for the people, of the people. Thank you. अगर Thank- समझ में आए तो। Thank you very much for being here. Thank you.